सेट्स कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप. वार्म अप हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे. सो उसके लिए यू कैन जस्ट डू द नेक वार्म अप फर्स्ट. और उसके लिए अपने चिन को नीचे और ऊपर लेकर जाइए एंड रिलीज द टेंशन इन योर नेक very slowly. 3 to 4 or even 5 rounds is fine. And then left to right. So अपने ईयर को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश कीजिए. ईयर टू शोल्डर्स. इसमें कंधे को ऊपर नहीं लाना है, ईयर को नीचे लेकर जाइए. And feel that your neck muscles are getting warmed up. At the same time tension release हो रहा है. Now the shoulder warm up. So backward motion में full motion दीजिए. Backward motion, full motion. You can do this 7 times. And then forward 1, 2, 3, 4, 5. 2 more. And relax. Let's do the wrist warm up. Wrist का हम काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं. So feel your wrist warming up and do the reverse. Keep a smile on your face while doing exercise. Awesome. And then do the hip rotation, hip circle, full motion. So just be in comfort. जितना आप कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे कीजिए. एंड ऑपोजिट एंटी क्लॉक. आपके एब्स भी एंगेज हो रहे हैं इसमें. योर कोर इज गेटिंग एंगेज्ड. एंड रिलैक्स. नाउ what you can do is you can just stretch your hamstring and then quadricep at the same time. आप चाहे तो साइड में सोफ़ा का या तो चेयर का सपोर्ट लीजिए एंड डायनेमिकली इसे स्ट्रेच कीजिए. हम पूरा दिन क्योंकि बैठे रहते हैं तो ये मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं quadricep एंड hamstring. सो 3 बार आप कर सकते हैं both the legs. Keep a support. अगर out of balance हो रहे हैं, keep a support. Feel the stretch in your hamstring and now in the quadricep, your thighs. Last time. And the last warm up, which is ankle. So simply circle में घुमाना है उसे. Very easy. And then anti-clock. उसे बता दीजिए कि हम ready है वर्कआउट करने के लिए. Other leg. Beautiful. धीरे 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 आपका बॉडी मानो खुल रहा हो. Opening up for the exercise. ऐसा फील कीजिए. Awesome. Let's start with our first exercise. Warm up is over and the first exercise is simple jumping jacks. So what you're going to do is 1, 2, 3. Let's do 30. All right. Keep going. Let's do 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 more guys. 3, 4, 5. 10 more. All right, awesome. Next exercise, which is inchworm. So what you're going to do is, आपके पास अगर मैट है उसके एज पर आ जाइए. गो डाउन, वॉक 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 वॉक. प्लैंक की पोजीशन में आ जाइए. कम बैक एंड स्टैंड. वन मोर. गो डाउन, come back and stand. Keep going, keep going, keep going. 3. Let's do 10. 4, 6 more. ऊपर आए तब बिल्कुल सीधे हो जाइए. 5. Stand straight. Go down.
6. 4 more, guys. Come on, you can do this. Easy. 3 more. 2 more. And the last one. And come up. Next exercise, number 3 exercise, that is shuffle and touch the ground. So let's go. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 10 each side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one. And relax. Amazing, guys. How is it feeling? Let's do the next exercise, which is mountain climbers. Take a deep breath. Take a deep breath. Let's do mountain climbers. Plank position में आ जाइए and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 more. 19, 20, and you can relax. Beautiful. Already you have done 4 exercises. Next one is slow burpees. Slow burpees, you can just do 15. If not, just do 10. All right? So, mat के आगे आ जाइए. Up, down, दोनों legs पीछे, दोनों legs आगे, and up. Come on, let's do 10 at least. This is slow, this is not fast, so you're not jumping. If you want, you can jump. So you can jump back, you can jump forward and up. 5, 6, 7, 8, 9, and last one. Awesome, wonderful. Next one, and that is reach and crunch. So one side, अपने feet को almost 45 से थोड़ा सा tilt कर सकते हैं. 45 भी चलेगा. And then you can turn to your side a little bit and reach and crunch, crunch, crunch. Try 15 each side. 5, 6, 7, 9, 10. 5 more. 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4. Come on. Reach and crunch. 5 more. Reach and crunch. Last one. Amazing, guys. Beautiful. Next one, and that is plank ही करेंगे, but then you have to come up and down in plank. So in this position, 1, 2, just do 10, 3, 4, 5 more. You can do this. Come on. Last one. And you can relax. Whew. Let me know in the comment, how are you feeling at this moment? Beautiful. Next one, and that is alternate knee and elbow touch. So come to the plank position and then put your heels down. All fours में आ जाइए. Alternate hand and leg raise and then crunch.
1, find your balance, 2, 3, 4, 5, let's do 10, and last one. Beautiful. Other side. Come on, you can do this. Other side. 2, 3, 5, last one, and relax. Good. Very nice. The next one, 8th exercise that we have done. The 9th one, last 2 left. That is Superman. Superman. So, उल्टे लेट जाइए आपके मैट के ऊपर. For the back, we are going to do this exercise. So what you have to do is, दोनों हाथ को आगे रखते हुए हाथ को भी ऊपर लेकर आना है और पैर को भी ऊपर लेकर आना है, like this. 1, down, 2, and down. Do 10. Feel your back muscles working. Hold for a second and down, then down. Come on. Last one. And relax. Okay, now comes the last one, and that is you're going to lie down on your mat like this, on your elbow. Okay, और नीचे के leg को bend कर दीजिए 90 degree angle, and in this. So exactly आपके एक knee के नीचे दूसरा knee होगा, and 90 degree angle आपको bend करना है. Keep your hands here or here, जो भी आपको comfortable लगे, and leg raise. 2, 3, 4, 10 each side. दोनों leg पर करना है at least 10. And relax. Other side. Rest on your elbow. Bend your knees and go 1, 2, 3, 4, 5. This is very easy. 6, 7. Feel your outer thigh. You can do more of these, no problem. And relax. Let's take a break of 1 minute. If you feel like you can just drink some water, 1 या 2 sip लीजिए, ज़्यादा नहीं. Just take a break of 1 minute. And then हाथ को पीछे लेकर जाइए. Look up. अपने बैक को bend कीजिए. Chest stretch. And then hug yourself round your back. One more time. Hug yourself other side. 2 more. Hug yourself. And hug yourself. And relax. Let's do some shoulder stretch. Hold for 10 seconds. Other side, hold for 10 seconds. Keep breathing deep. Feel the blood flow, the energy moving in your body from your head to the toes. Relax. Tricep stretch. इसे stretch कीजिए. Close your eyes. Feel the stretch. Other side. Breathe out from your mouth if you need. तो ज़्यादा relaxation का feeling होगा आपको. And then relax. Now अपने leg को butterfly pose में लेकर आइए. And just feel the stretch. Amazing stretch. Beautiful. Keep breathing deep. Keep breathing deep. Let's come to Baddha Konasana, the last pose, and that is
ऐसे ही रखते हुए you can slowly go down, down. And slowly, whenever you are ready, you can come back and you can. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबने एंजॉय किया वर्कआउट सेशन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ जी, तो हम अब अपनी बात शुरू करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। कल के दिन में क्या जादुई घटना हुई आपके साथ, आप जरूर से शेयर करें। कल का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हेलो सभी को नमस्कार, मैं शांति। मैंने किसी को बताया था इल्यूमिनेटेड एसेंस के बारे में, तो मैंने उनको फेशियल भी किया था आर्टिस्टिक का, तो उनके मतलब जाइयाँ बहुत हैं, तो मैंने कहा ये तो इल्यूमिनेटेड एसेंस से जाएंगी और फिर आप फेशियल वगैरह भी ले लेना बाद में। तो ठीक है, मैंने इल्यूमिनेटेड एसेंस का ऑर्डर दिया, कल उन्होंने बुलाया था मुझे। मैंने कहा मैंने ऑर्डर देखा है, तो बोली नहीं आप तो ना फेशियल किट मंगा। मैंने क्यों? कहती मेरी कोई फ्रेंड बोल रही थी कि आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या किया है आपने? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे मैंने फेशियल किया आर्टिस्ट का। तो बोला नहीं मुझे भी कराओ, मैं भी लूंगी। तो ये मतलब एक से दूसरे दूसरे के मतलब हमारे चेहरा बता देता है कि हम लोग क्या। जैसे कि मेरे आर्टिस्टिक मतलब देख काफी अच्छा रिटेल हो रहा है ईश्वर की दया से। ये जादू ही हो रहा है कि मैं पहले आर्टिस्टिक नाम से डरती थी कि इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा, लेकिन मेरे अब वही रिटेलिंग ज्यादा अच्छी हो रही है। तो हम लोग को थोड़ा अपना प्रोडक्ट यूज करके लोगों को करते हैं तो, और अब खुद यूज करते हैं तो विश्वास तो आता ही है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और एक मैंने एक डेमो भी दिया आंगनवाड़ी में, तो उन्होंने भी कहा हम आपसे मिलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ऑसम। सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम से मुझे याद आया कि हाँ, कल मेरे पास भी अचानक एक फोन आया और उनको कुछ 4-5 मंथ बैक मैंने पिगमेंटेशन के लिए बात की थी और आर्टिस्ट्री यूजर हैं वो, मेरे बताने पहले से ही क्लिंजर वगैरह यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो बता रहे थे प्रोडक्ट, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेडिसिन लिए हैं स्किन स्पेशलिस्ट से और वो ठीक होता है वापस आ जाता है, तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि पूरा आप मुझे बता दो, कितने भी पैसे लगे, आप तो मुझे ये बताओ कि कितने दिनों में चला जाएगा और फिर वो ये वापस नहीं आएगा। तो विटामिन सी, सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम, ये सब लेने के लिए वो रेडी है। यूथ एक्सटेंड सब लेने के लिए रेडी है। तो बस आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। जब हम पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं तो अपने आप ही फिर कस्टमर जो है वो पलट के आ जाते हैं। चलिए जी, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? नमस्कार। गुड बहुत मॉर्निंग भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ। सुबह के सेशन से बहुत अच्छा हो रहा है और माइंड की ट्यूनिंग में कल का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा। और कल का जो है हमारा सर के बिना हमने कल जो मीटिंग की वो यही सोचा कि बहुत अच्छी रहेगी। तो ऑन एवरेज सर की मीटिंग से आप लोग भी आए। कल जो है वो 10 आदमी ज्यादा थे, तो मेरे का ये था कि सर नहीं है, क्योंकि लोग डंडे से काम करते हैं तो अपलाइन बहुत अच्छा है। तो ये सेशन कल का बहुत अच्छा रहा। और कल भी हमारे पास जो नए लोग थे, हमने जो पुरानों को टच किया, तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इवन देन हमें एप्सा के लिए भी अच्छे एक्सपीरियंस मिले और बहुत जल्दी हम ग्रुप में जो हमारे लीडर्स को एप्सा के रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू जादू सेशन, थैंक यू आपको और एफ कैम टीम एवी के डायमंड्स को। थैंक यू सो मच भैया शेयर करने के लिए। रियली बहुत अच्छी मीटिंग थी कल की मीटिंग, जिसने भी अटेंड की थी, बहुत सुपर ऑसम जो है वो भैया की पेस मीटिंग थी और डेफिनेटली काफी कुछ चीजें सीखने को मिली। और बिल्कुल, तो हम यहाँ पे बॉस का डंडा भी नहीं है, लॉस का डंडा भी नहीं है, तो बिल्कुल अपने ड्रीम का डंडा है यहाँ पे। तो हम सब जो है यहाँ पे टिके हुए हैं अपने
सपनों के लिए, और वो कल की मीटिंग में भी चीजें साबित हो रही थी। सब अच्छी गैदरिंग थी और सब लोग अच्छे से सुन रहे थे, चीजों को समझ रहे थे। थैंक यू सो मच। और भी कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? ये बहुत मतलब बहुत ऑसम प्लेटफॉर्म होता है जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप बहुत सारे लोगों को अननोइंगली मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो छोटी-छोटी बातें ही सही, मतलब ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इसमें क्या शेयर करना है, इसमें तो कुछ शेयर करने वाली बात ही नहीं है। बहुत छोटी बात भी होगी ना, तो भी आप शेयर करोगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और आपको एक बार शेयर करोगे तो दोबारा भी शेयर करने की इच्छा होगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बोलने का मौका होता है जिसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, वेलकम। हाँ, मैंने कल का सेशन देखा था और पूरा सुना मैंने। एक्चुअली बीच में बेटी रो रही थी, पर ठीक है, उसके पापा थे, वो संभाल रहे थे कि मुझे पूरा सेशन देखना है। पर ये सब बहुत अच्छा सुनने को, और हाउ टू यूज प्रोडक्ट, और नीता जी का सेशन, मतलब सब कुछ मतलब सीखने को मिला कल। हाँ, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। तो प्रियंका जी काफी न्यू है बिजनेस में, लेकिन अपना डेडिकेशन जो है एकदम शो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं। तो जो बिजनेस के स्टेप्स हैं वो प्रियंका जी फॉलो कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इनको ऊंचाइयों पे देखेंगे। और बिल्कुल मैं एक और दो और एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकती हूँ। मोस्ट वेलकम, अगर कोई भी शेयर करना चाह रहा है कल का एक्सपीरियंस। तो किसी के हेलो। पास कुछ? हाँ जी, वेलकम। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूंगी। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। कल मिला एक सिग्नेचर सेलेक्ट का ऑर्डर आ गया और वो डिलीवर भी कर दिया हमने। तो बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, ऑफर्स का पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम दीदी आपने भेजा, और आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कस्टमर के बारे में, क्या इशू था या क्या चीजें थी जो आपने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने फिर सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम लिया? नहीं, उनके घर में फरवरी में शादी है, तो तब तक वो अपनी स्किन को रिन्यू करना चाह रहे हैं। तो उसी सिलसिले में उन्होंने लिया है कि इसके बेस्ट रिजल्ट आएंगे तो मेरी स्किन शादी में ग्लोइंग हो जाएगी। ग्रेट। तो उसके लिए आपने एम्पलीफायर कौन से सजेस्ट किए उनको? उनको मैंने एक तो फार्मिंग एम्पलीफायर है, एक एंटी रिंकल है और एक स्पॉट करेक्टर है। ग्रेट। तो आप देख रहे हैं कि शादियों के सीजन में जो है वो हम सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम जो है वो उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये वाला टाइम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसमें कि हम सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम के ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। इन एम्पलीफायर के साथ जो बेस सीरम का ऑफर आ रहा है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट ही एक्सपीरियंस और मैं ले सकती हूँ, कोई और शेयर करना चाहता है? हाँ जी, वेलकम निधि। गुड मॉर्निंग सीमा, मैं निधि। मॉर्निंग। मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी तक मैंने सेशन में बहुत बार सुना है कि किसी भी अननोन ने आगे से बढ़ के मुझे कॉल किया प्रोडक्ट के लिए। तो मैं इधर कई दिनों से बड़ी फ्रीक्वेंटली ये सोच रही थी कि यार ऐसा होता है क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो कल मेरे बेटे की फ्रेंड की एक मम्मा ने कॉल किया। उनको मैं काफी पहले प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टच कर चुकी थी, बट उनको मैं भेजती रहती थी ऑफर्स। और कल उन्होंने जिस तरह से कॉल किया कि निधि आप न्यूट्रीलाइट में डील करते हो, आप मुझे ना 2 बायोटीन, 1 कैल्शियम, 1 विटामिन डी, आप मुझे ना तुरंत फटाफट ऑर्डर कर दो। तो मैंने समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सच में हो रहा है या मैं सिर्फ सोच रही हूँ। ऐसा होता है, मतलब कल मुझे बीच में जादू होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सच में लगा कि नहीं, सब बोल रहे हैं ना, तो ये होता है। थैंक यू सीमा। ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल होता है, और ये सारी चीजें हम सबके साथ हो रही है क्योंकि हम जादू में एंटर कर चुके हैं। तो ये सारे जादू हमारे साथ होंगे बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे। बिल्कुल ये एक टाइम है जिसमें कि हम
विजुअलाइज करते हैं अपने आप को एफ कैम है ना, फाउंडर ईडीसी जो है वो हम अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं, और सुमित जी की तरह जो है हम अपने टीम को मैसेज दे सकते हैं। तो ये एक टाइम है जिसमें कि हम अपने पूरी टीम को मैसेज दे रहे हैं वाई टू ड्रीम के ऊपर। तो आज ये अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा? दीदी आपने बुक की बात करी, सॉरी मैं सुन नहीं पाया था। मैं पॉडकास्ट की बात कर रही हूँ, वाई टू अच्छा ड्रीम। ठीक। तो आज कौन ये विजुअलाइज करना चाहेगा? मोहन भैया का हैंड रेज मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं दीदी? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मोहन भैया से सुनेंगे, उससे पहले सुमन दीदी से सुनेंगे। हाँ जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम है ना, मतलब स्टार्टेड करने के लिए ये सबसे बेहतरीन समय है कि आज हम अगर इंडिया में है ना, हमारे बहुत ज्यादा है कि हम है ना दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सोचना पड़ता है, स्टार्टअप के लिए सोचना पड़ता है। तो दोस्तों हम अभी भी किसी भी स्थिति में है तो अपने स्टार्टअप पे फोकस करते हैं तो हम अपना नए से स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे ड्रीम होने चाहिए। ड्रीम है ना अगर हम, तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें जैसे भी आज कुछ भी करने के लिए मतलब कुछ अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें है ना बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, एक रिस्क लेना पड़ता है स्टार्टअप करने के लिए। तो इस तरीके से हम है ना, हमारा कार्य है ना कि मतलब हम अपने फोकस को और निर्धारित करके, और इंडिया इसके लिए बहुत अच्छा अपने लिए एक है कि इस हमें अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ड्रीम होने चाहिए, हमारे सपने हैं जो हमें हमारे कार्य को तेजी से करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसमें बस यही है कि आप कितना समय देते हो, किस तरीके से करते हो, और क्या जो सपना है उस पे आपका फोकस कितना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने आधा ही सुना है इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्टार्ट ही किया है, थोड़ी मैं बिज़ी थी इसलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमन दी, बहुत शानदार आपने बताया। और मुझे कुछ हैंड रेज और दिखाई दे रहे हैं, तो मैं जल्दी से बुलाना चाहूंगी आज के हमारे फाउंडर ईडीसी सुप्रिया जी को। सुप्रिया भाभी, वेलकम। थैंक यू सो मच। जो सुमित जी का हमारा जो वाइड ड्रीम है, ड्रीम का, क्योंकि हम लोगों को ड्रीम्स बहुत जरूरी है और लाइफ में लोग जो होते हैं, डिफरेंस यही होता है कि ड्रीम और पर्पस होना चाहिए, क्योंकि जब ड्रीम और पर्पस होगा तभी हम एम्बिशियस होंगे, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। और यदि ड्रीम नहीं है तो हम कुछ भी जो चल रहा है वो चलता रहेगा और हमें कोई, वो कहते हैं ना, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, काम करने का फोकस नहीं आएगा। तो फोकस तभी आएगा जबकि ड्रीम होगा। ड्रीम आपको क्या करता है कि हमेशा हम अपने ड्रीम्स को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं ना, हम उसको रखते ही नहीं, किसी के सामने नहीं करते हैं। तो ड्रीम जो होगा, यदि हम ड्रीमर बनेंगे तो आप फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचोगे, आप आगे बढ़ोगे और ड्रीम आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। अब ड्रीम का प्रोसेस क्या होता है कि कई भी जैसे बताते हैं कि हम किसी से भी ड्रीम्स के बारे में पूछे तो उसके 4 प्रोसेस होते हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन, है ना। तो जैसे कभी भी, जैसे किसी व्हाट जो होता है ड्रीम्स में, आप किसी का भी कोई भी कैसा भी ड्रीम हो सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं। फैमिली से रिगार्डिंग ड्रीम हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है, कहीं भी कोई भी इंटरेस्ट जो है उसका, वो उसका ड्रीम होना होता है ना। और वाई में ये ड्रीम्स जो है हमारा कि क्यों चाहिए। जैसे किसी से एग्जांपल दिया गया कि एक उसको लिम्बोर्गिनी कार चाहिए थी और उसका घर बहुत छोटा सा है। वो ऐसे डींगे हाँकने के लिए ड्रीम नहीं होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि जब इस रियलिस्टिक ड्रीम होगा वो ही अचीवेबल होगा। और ड्रीम्स को हमेशा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जो क्योंकि कभी भी ये रास्ता जो है सीधा नहीं होता है ना। तो जब सीधा रास्ता नहीं है तो हमें उसको यदि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी वो ड्रीम जो है अचीवेबल होगा। तो ड्रीम्स के जो चीजें इन्होंने बताई कि ड्रीम्स के लिए हमें क्या करना है, उन्होंने बोला विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विजन बोर्ड होगा तो हमें हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको लगातार मैसेज मिलता रहता है कि हमें ये करना है, ये करना है, वो हमारे सामने रहता है।
तो ड्रीम हम अचीवेबल मतलब लिख भी सकते हैं, प्लस आप पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं, क्योंकि जब वो हमारे सामने रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे, प्लस हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाता रहेगा। तो जब वो मैसेज जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुप्रिया भाभी। आप बिल्कुल एक ही मिनट में बिल्कुल सुनना चाहेंगे ब्रांड न्यू फाउंडर ईडीसी निधि से कि वो अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाह रही हैं। थैंक यू सीमा। मैं भी कई बार सुन चुकी हूँ और अभी भी वॉक करते करते यही सुन रही थी। तो जैसा कि अभी सुप्रिया भाभी ने बताया कि कहते हैं ना, हमने पहले भी बहुत अपने बुजुर्गों से, मतलब दादा दादी, नाना नानी, माँ पापा से भी यही सुना है कि सपने बड़े देखो। तो शायद उसका मतलब, कई चीजों का मतलब ना अब समझ में आ रहा है कि सपने बड़े देखने का क्या मतलब है। जब तक आप ड्रीम बिग नहीं लेकर के चलेंगे, आप आगे लाइफ में उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये जो व्हाट, व्हाई, व्हेन जो बताया, तो मैंने जहां लिखा है, मैं ये सोच रही थी अब मैं डायरी खोल करके एक बार फिर से उसको देखूंगी कि उसमें मैं और क्या ऐड ऑन करूं, कि मुझे क्या आगे मेरा और बड़ा क्या सपना होना चाहिए। तो सपना हमेशा पहले आपकी तो आवाज सपना बहुत धीमी है। क्या अब आ रही है? हाँ, आ तो तो रही है। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में एक सपना जरूर होना चाहिए, और उस सपने, मतलब व्हाट, क्या सपना है आपका, और वो सपना आप अगर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। ये नहीं कि आपने कुछ भी ऐसे ही देख लिया, जैसे अभी भाभी ने भी बताया और हमने सीडी में भी सुना कि कोई भी कार सिर्फ दिखावे के लिए ले लेना, कि उसका लाइफ में आप, मतलब जो ऐसा सपना हो जो आपकी लाइफ को कोई पर्पस दे सके। तो और वो सपना आप कब तक पूरा करना चाहते हैं, ये 3 एम लेकर के अगर आप लाइफ में चलते हैं तो डेफिनेटली उस सपने को पाने में कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि। और बिल्कुल उसको कंक्लूड करेंगे, एकदम पूरी टीम को मैसेज देंगे। ब्रांड न्यू फाउंडर ईडीसी मोहन भैया, वेलकम भैया। थैंक यू। निधि जी ने और सुप्रिया दी ने और सुमन दी ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। उन सबको दिल से बधाई। ये काम आपको लीडरशिप भी देता है। और ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने ड्रीम को स्केयर करें। कई बार आपको खुद आपका ड्रीम डराने लग जाएगा। आपका ड्रीम में जब भी कभी डाउट आए तो आप उसको रिवाइज करें। ड्रीम तो बहुत जरूरी है, और सबसे जो महंगी जगह है ना, वो कभी नहीं है। आपके ड्रीम वहीं जब दफन हो जाते हैं, तो आप अपने ड्रीम को, आपके पास इनोवेशन है, टैलेंट है, उसको यहीं लोगों के साथ शेयर करें। बहुत से लोगों का भला होगा। तो ये सभी जो है ना, जितना उन्होंने कहा, बहुत ही दिल से उनको धन्यवाद। कि देखिए इस प्लेटफॉर्म पे मैंने भी एक बार पहले सुना था, और अभी सिर्फ 5 मिनट पहले ही आपने मेरे को भेजा है। तो मैं यही कहूंगा कि ड्रीम जो है, अपने ड्रीम को पकड़ के रखें। ड्रीम जो स्पेसिफाइड हो, जैसे निधि जी ने कहा, सुप्रिया जी ने कहा कि लैम्बोर्गिनी कार जो है वो आपको नहीं, आपको दिखावे वाला ड्रीम कभी भी सक्सेस नहीं होगा, वो कुछ क्षणिक होगा। तो सभी को धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। ग्रेट, ऑसम। और अब हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल आज का पॉडकास्ट सुन के और सबके फाउंडर ईडीसी के मैसेज सुन के आपको लग गया होगा कि कितना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे अपने आप को ड्रीम से पालना, है ना। ड्रीम देखना, ड्रीम को लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सब लोग जिन्होंने अभी तक ये वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है हमारे बिजनेस में आने के बाद कि अपने ड्रीम लिखने होते हैं, वो जरूर से आज ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और अगर अभी तक नहीं की है तो लिखेंगे, और नहीं और लिख चुके हैं तो वापस उसको रिवाइज करेंगे और वापस से देखेंगे कि आपने क्या अपने लिए सोचा हुआ है, क्या ड्रीम आपने लिखे हुए हैं। और आगे हम बात करेंगे। दीदी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी दीदी, जो हमारे तिलक सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके ऊपर हमारे पॉडकास्ट दूसरे सर्कुलेट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम लोग सेम ही सुने। तो आप मुझे थोड़ा आप ये बता देंगे कि हम कल आज डे में कौन सा सुनेंगे, सो दैट हम वही उस ग्रुप पे भी शेयर करें। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने कहा।
सीमा, Why मैं भी to यही बोल रही थी आपको, क्योंकि मैं फिर कनेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ कि आप क्या डिस्कस करने वाले हो, तो हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते फिर। अच्छा जी, वाई टू ये ड्रीम के देखिए। बाद आई थिंक मैं अभी आपको बता देती हूँ। और मैं भी, आप चाहे हमारा जो बुक रीडर क्लब है चाहे उस पर डाल दीजिए कहीं भी, मतलब हाँ, उस हम पर सब। डाल देती हूँ। माइंडसेट, कोई बात वाई नहीं। टू ड्रीम के बाद जो है वो है माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल U30 एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कल हम ये वाला डिस्कस करेंगे। हाँ जी, और आप वो हमारे बुक रीडर क्लब पे, क्योंकि उसी से सेम ही सब लोग सुनेंगे तो हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ डालने में, तो मैं अभी ये वाली चीज डाल दूंगी। थैंक यू दीदी। माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल U30 एंटरप्रेन्योर। श्योर दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। और नेक्स्ट अब बात करते हैं बुक के बारे में। डेफिनेटली आप सबने पढ़ा होगा बुक को, और तिलक सर ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था डिक्लेरेशन के बारे में, और सब लोग पढ़ के आए होंगे, तो सबकी लर्निंग बनी होगी। उससे रिलेटेड कोई भी शेयर करना चाहे अपना टेक अवे, क्या समझ में आया, जिसमें हमने बात की है घोषणाएं, परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। रोहित भैया शेयर करना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेज दिखाई दे रहा है मुझे। मैं भी वेलकम बता भैया। सकती हूँ। यस दीदी, जो बुक में मैंने पढ़ा है फ्रॉम पेज नंबर 28 से पढ़ा है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं, जैसे शुरुआत इससे हुई थी कि हमारा जो बाहरी जीवन है वो हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग का नतीजा है, कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो हमारा इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हम कैसे हैं, उससे ये चीज डिसाइड होता है कि हमारा बाहरी जीवन कैसा होता है। तो उन्होंने फिर ये बताया कि जो हमारा बाहरी जीवन है, जो रिजल्ट है वो ड्राइव होते हैं आपके थॉट से। थॉट आपकी फीलिंग्स को बनाता है, फीलिंग से आपको कुछ आप एक्शन करते हैं और उससे आपके रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये थॉट कहाँ से आते हैं? तो थॉट आते हैं हमारी प्रोग्रामिंग से, ये उन्होंने बताया। और जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो होती है आपकी शाब्दिक प्रोग्रामिंग होती है, और उसके बारे में उन्होंने बताया कि और वो शाब्दिक प्रोग्रामिंग जो है हमारी, वो हमारे धन का जो ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट को डिफाइन करती है। और बहुत से लोग हैं जिनके बचपन में वो अपने माता पिता या अपने समाज से या अपने संस्कारों या अपने जो जिस संस्कृति में वो रहते हैं उसमें कई बार वो ये सुनते हैं कि जैसे पैसा कमाना खराब है, पैसे वाले लोग दूसरे को चीट करके पैसा वाले बनते हैं, और पैसे वालों के लिए बहुत सी बुरी चीजें वो सुनते हैं, जिसके कारण से वो उनकी वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। सो ये उन्होंने बताया। तो उनके वो और उन्होंने फिर बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए कि किस तरीके से लोगों को वो कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन ये बताया, अगर आपकी भी ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप उस प्रोग्राम, आपकी अवेयरनेस हो, आपको जागरूकता हो कि मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है। उसके प्रति आप जागरूक बने। जागरूक बनने के बाद में आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग का आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा है, और फिर उसके बाद में आपको उस प्रोग्रामिंग से अपने आप को दूर करना है। यू हैव टू डिसएसोसिएशन, मतलब उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना है उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग से, और उसके बाद में आपको रिकंडीशन करना है, आपकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो ये उन्होंने तरीका बताया है कि अगर आपका वर्बल प्रोग्रामिंग, आपके घर परिवार से अगर आपको प्रोग्रामिंग ऐसी मिली है कि पैसा बेकार चीज है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे आपका धन का ब्लूप्रिंट सही नहीं है, और इन स्टेप से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको समराइज इस तरीके से करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से हम अपने धन के ब्लूप्रिंट को सुधार सकते हैं, जो भी आज तक हुआ है ना। जो चीज हमें पसंद नहीं होती वो तो हमसे दूर ही जाती है, तो हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचना है कि पैसा जो है वो बेकार चीज है, राइट। तो वो ब्लूप्रिंट जो है वो हमें अपना ठीक करना है। और आई थिंक आपने भैया पेज नंबर कहाँ तक कवर कर दिया? जस्ट अ सेकंड बता 28-30 क्या है? ये जैसे 34 पेज नंबर 34-35 तक की ये समरी मैंने बताई, 34 तक, एंड ऑफ 34। हाँ जी, तो हम दूसरा प्रभाव मॉडलिंग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, पेज नंबर 35 से।
कल वैसे सीमा जी परिवर्तन का रहस्य था ना, कल यही था शायद परिवर्तन का रहस्य 25 पेज से था शायद, हाँ 27। हाँ तो वही शेयर किया ना। हाँ। थोड़ा इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐड हाँ, कीजिए। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि हम जो चीज देखते हैं वो हम लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं मनी से पढ़ने के। जैसे कि अभी तिलक जी ने हमको जादू में भी दिया था कि हम लोग पढ़ तो रहे थे बुक, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि सर ने समझाया और हमने देखा तो हम लोगों को अप्लाई करने लगे। तो इसीलिए इसलिए उनमें राइटर ने ये भी बताया कि हम कोई चीज की घोषणा करते हैं, जैसे संकल्प और घोषणा में क्या अंतर है। संकल्प में तो हम ये कहते हैं कि हमें ये चीज मिल गई है, और घोषणा में हम ये कहते हैं कि मैं घोषित ये बनने जा रही हूँ। तो उस घोषणा और संकल्प में यही फर्क है। संकल्प बनते संकल्प करते तो मन यही दिमाग यही बोलता है कि नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता, फालतू झूठ बोल रहे हो। और जब हम घोषणा करते हैं तो उसमें यही दिमाग कहता है कि हाँ ठीक है नहीं, लेकिन मैं आगे के भविष्य के लिए घोषणा कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज जरूर मिलेगी। तो इसमें ये डिफरेंस बताया गया। और उसमें ये कहा है कि थॉट फियर TFER के बारे में बताया कि मतलब विचारों भावनाओं से विचार अपने विचारों से हम लोग एक्शन करते हैं, एक्शन से हमको रिजल्ट मिलता है। तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं, घोषणा करते हैं, तो ये सारी चीजें बनती है और आगे हम लोग सफल होते जाते हैं। तो ये और ऐड करना था। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल आप रोहित सही भाई कह ने रहे हैं। अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, ब्लूप्रिंट वगैरह बारे में बहुत अच्छा बताया। तो ये थोड़ा से आगे था। थैंक यू। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित भैया और शांति जी ने बहुत अच्छे से कवर किया। और ये वाली चीज बिल्कुल ठीक होती है कि हम जो हमें लगता है ना कि अभी वो दिख नहीं रहा होता, उसका रास्ता नहीं दिख रहा होता और एफर्मेशन हम कर रहे होते तो हमारा दिमाग ही जो है वो हमसे लड़ाई कर रहा होता है। तो वहां पे हम जो है वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। मैं अभी सुबह सुबह ही देखती हूँ जब हम बोलते हैं कि ब्रांड न्यू फाउंडर ईडीसी, तो हम शायद अपने दिमाग में वो वाली चीज शायद ला ही नहीं पाते। मतलब मैंने अभी सुना सबको, मैं खुद भी अगर इस तरह से करती तो वो वाली फीलिंग जो है ना वो उतना गहराई तक नहीं आ पाती। और हम बार-बार जैसे हर मैसेज में जैसे तिलक सर ने हमें बताया था और पीयूष भाभी ने हमें बताया था कि हमें बिल्कुल ये सोच के करना है कि आपकी टीम है और आप फाउंडर ईडीसी है। तो हम बार-बार क्या देख रहे होते हम बार-बार क्या बोल रहे होते हैं जब शेयर कर रहे होते हैं कि वहाँ पे ये बताया गया है, सुमित जी ने ये बताया है, जबकि हमें क्या करना है, हम जैसे पूरी टीम को मैसेज दे रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि वो अफ़र्मेशन और डिक्लेरेशन में थोड़ा एक फ़र्क जो है वो वहाँ पे दिखता है, कि फाउंडर ईडीसी तक हम अभी डिक्लेयर कर सकते हैं, अफ़र्मेशन शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो बिल्कुल इतना ज़बरदस्त, इतना स्ट्रॉन्गली डिक्लेयर करना है कि वो अफ़र्मेशन के लिमिट में आ पाए और हम पूरा उस चीज़ को फ़ील कर पाएँ। थैंक यू सो मच। और अब आगे बात करेंगे फ़ोकस शेयरिंग। आज के दिन का फ़ोकस क्या रहेगा आपका? भाभी आप शेयर कर सकते हैं। भाभी 1 मिनट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे अभी भैया और ने बोला कि जो अपन पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, आप इसमें मतलब जो बुक वाला है ना, इस पे आप शेयर कर दिया करो ताकि हम भी अच्छे से उसको सुन पाएं और उस पे मतलब कर पाए। क्योंकि ये आप लोगों ने जो मतलब हमें है ना ये सुबह-सुबह की क्लास दी है ना, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जब पूरा सुन के और कोशिश करते हैं ना कि भी हम भी बोल रहे हैं ना, तो वो अंदर से भी विश्वास आता है कि भी मतलब नहीं, ये हम हमारी टीम को मैसेज बिल्कुल। दे रहे हैं तो ये डेफिनेटली होएगा। हुँ, थैंक यू सो और मच। वैसे तो देखो बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट इस सीक्वेंस में ही चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये सेशन खत्म होते ही मैं नेक्स्ट डे का मैसेज डाल दूँ। फ़ोकस के बारे में आज कौन बताना चाहेगा? आज मैं यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूं तो आज 2 इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। एक तो मैंने कल बताया ही था, आज शाम को 5 बजे न्यू प्रोग्राम है। जो भी नए एडीआर और रेडियस हमारी टीम में है उनकी सही शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है न्यू फाउंडेशन। तो 10 दिसंबर शुक्रवार 5 बजे मुंबई क्लस्टर ट्रेनिंग ग्रुप पे है, आप कोई भी उसको देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। इसके अलावा एक और अच्छी है, एक सेशन है 4 बजे मेनोपॉज के ऊपर, कि इसके सारी डिटेल है उस पे, वो एक्सपर्ट शेयर करेंगे कि ये क्यों होता है और इसका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैसे हैं। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा नॉलेजफुल होगा स्पेशली फॉर लेडीज। तो दीज आर 2 ट्रेनिंग्स आज। भैया ग्रेट। इसको भी आप है ना इस ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि है ना मतलब जैसे किसी के टेलीग्राम चल रहा है किसी का नहीं चल रहा है तो उस पे मिलता नहीं है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है।
तो आप जो भी हम आज के प्रोग्राम हो ना, या तो दीदी भाभी के पास मेरे नंबर है तो पर्सनल मैं सॉरी सुमन जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इसलिए नहीं शेयर कर सकता उस ग्रुप पे क्योंकि वो ग्रुप जो है वो सिर्फ बना हुआ है बुक के लिए। बिल्कुल तो अगर एमवे हम डायमंड पे शेयर कर देंगे। एमवे डायमंड में आप सब शेयर कर दिया करो हाँ ताकि जी, सबको ही फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और आज का कौन शेयर करना सीमा चाहेगा? सीमा हम लोग नहीं है एमवे डायमंड में, तो आप एमवे माई वे या ऐसे कोई जिसमें सब लोग हों वहां पर कर लेना। और ये बिल्कुल। जादुई वाला डेफिनेटली यहाँ पर हमने अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ऐड किया जो ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो अजीब हो जाता है और फिर छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए वहां नहीं करना। बिल्कुल। तो आज का फोकस आई थिंक ट्रेनिंग के हम बीच में बातचीत में ही रह गया है। तो कोई भी फटाफट एक लास्ट में फोकस सुनना चाहूंगी, अगर किसी का कोई और फोकस है तो डेफिनेटली शेयर करें, अदरवाइज हम प्रेयर की तरफ मूव करेंगे। मेरा फोकस ये रहेगा कि मुझे ना अपनी 2 टीम है जो उनसे बात करनी और आगे के बारे में उनसे प्लानिंग करनी कि मतलब किस तरीके से हमें ग्रो करना है, और 10 कॉलिंग करनी। थैंक यू सो मच माय साइड। ग्रेट, ऑसम। तो प्लानिंग अगर पेपर पेन पे आ गई है तो दिन बिल्कुल बहुत शानदार जाने वाला है। अगर नहीं आई है तो बिल्कुल मीटिंग के जस्ट बाद बैठ के जो है वो प्लानिंग करें अपना डे। और आज प्रेयर करवाने की अपॉर्चुनिटी कौन लेने वाला है? दीदी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट करना चाह रहा था। जैसे आज सुमित सर फ्राइडे है, तो आज सुमित सर का नया ऑडियो आएगा दीदी, तो मेरे ख्याल से वो जो आप लोगों ने U30 वाला बताया था, तो उसकी जगह अगर आज बिल्कुल वाला ठीक। सेशन। हाँ, बिल्कुल ठीक याद दिलाया दीपक भैया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैंने सोच के भी रखा था कि फ्राइडे को तो नया वाला ही सुनेंगे और मैं बिल्कुल बातों में भूल गई अभी। तो थैंक यू सो मच भैया। बिल्कुल नया वो जो पॉडकास्ट आएगा वही हम कल डिस्कस करेंगे, वही उसी को सुनेंगे सब लोग। तो थैंक यू सो मच भैया। तो ये एकदम बहुत अच्छे से याद दिलाया भैया ने। प्रेयर कौन करवाना चाहेगा आज? मैं करवा देती हूँ सीमा। वेलकम वेलकम नीता दी। सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने ईष्ट को याद करेंगे। Thank you God, I am a pure, divine, knowledgeable soul. थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ उसी रूप में प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं स्वयं को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे महामस्तिष्क की महान क्षमताओं और शक्तियों का ज्ञान है जो मेरे हर सवाल का उत्तर देता है और मेरे लिए हर चीज संभव बनाता है। मैं वही सोचती हूँ जो मैं चाहती हूँ। थैंक यू गॉड, आप हर क्षण हर समय हम सबके साथ हैं। थैंक यू गॉड, मैं आपका प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए, इन सांसों के लिए, इस बहुमूल्य जीवन के लिए। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही यूनाइटेड, एक्साइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज DTM करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हम रोज ऑडियो सुनते हैं और किताब पढ़ते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बड़ी आसानी से 500 पॉइंट का पर्सनल डिटेल हर महीने कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम हर जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम एक बहुत प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं।
थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला रहा है। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारी लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स करने के लिए। थैंक यू गॉड, आई एम अलाइव, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू गॉड, हम सब हर साल फॉरेन ट्रिप्स पर घूम रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही यूनाइटेड, एक्साइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, आई विन बिकॉज आई एम बॉर्न टू विन। थैंक यू गॉड, आप और सारे हालात हमारी सफलता के हक में हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू सो मच नीता दी, इतनी अच्छे प्रेयर करवाने के लिए। तो अब सब लोग जो है अपना वीडियो ऑन करेंगे तो एक प्यारी से पिक जो है वो खींच लेते हैं। स्टिल वेटिंग, सबके खूबसूरत चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ और वीडियो ऑन होंगे तो और अच्छा लगेगा। रेडी? थैंक यू सो मच। बाय बाय टू ऑल। गो डायमंड। गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड। मिलेंगे। गो डायमंड। Full day. Go diamond. Thank you.